Good morning, everyone. Till now, we have covered our chapter 15. Today, we are going to do few more problems of this chapter. We are going to take few more questions, a few more queries of different kind, so that this chapter can be clear to you all, right? Here, I am starting with the last question of your exercise 15.1, and then I will continue with the extra questions. So your question here is blood group of few students in a class is noted down. There are total 30 students. 9 have blood group A, 6 have B, 3 have AB, and 12 students have blood group O. We have to find out the probability that if I choose a student, he or she will be having the blood group AB. What will be the probability? Mention in the chat box. Yes, 3/30, 1/3. It will not be 1/10. ज़्यादा जल्दी हो गया. 3 is the favorable. AB blood group के 3. So 3 is favorable and total are 30. आप इसको cancel करेंगे, you will get the probability to be 1/10. Right? Now we are starting with the extra questions. Now my question is, पहले easy से शुरू करते हैं. एक टेस्ट है पूरा मेरे पास यहाँ पर 40 मार्क्स का, उसको करना शुरू कर रहे हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जीरो व्हेन अ डाई इज रोल्ड. आंसर दीजिए जल्दी से. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जीरो व्हेन अ डाई इज रोल्ड. यस, राइट आंसर. 4 राइट आंसर्स आई हैव. 5 6 7 8. यस, करेक्ट. नॉट पॉसिबल तो है, बट दे आर आस्किंग द प्रोबेबिलिटी. वी हैव टू मेंशन द प्रोबेबिलिटी, क्योंकि डाइस के ऊपर 0 है ही नहीं, तो आपकी प्रोबेबिलिटी 0/6 मीन्स द आंसर विल बी 0. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इवेंट. आपने बताना इनमें से कौन सा इवेंट नहीं है. आई एम स्पीकिंग वन बाय वन. 4 ऑप्शंस आर देयर. इट्स अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. First question is getting no head when 2 coins are tossed simultaneously. Is it an event? Is it an event? No, yes, no, yes, सबके आ गए. No भी है, yes भी है. This बेटा इवेंट वो होता है जिसके आप आउटकम्स बता सकते हो, प्रेडिक्ट कर सकते हो, जिसकी आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो. दैट इज एन इवेंट. तो आपके पास दोबारा से सुनिए, गेटिंग नो हेड व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इज इट एन इवेंट. आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो. मतलब प्रोबेबिलिटी 0 आए, चाहे 0 और 1 के बीच में कुछ भी प्रोबेबिलिटी, आप प्रोबेबिलिटी तो निकाल सकते हो ना. सो दिस विल बी एन इवेंट, राइट. नेक्स्ट इज गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर व्हेन अ डाई इज रोल्ड. जरूरी नहीं है कि वो आपका उसमें कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए, चाहे 0 प्रोबेबिलिटी आए, बट अगर आप उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर पा रहे हैं, दैट इज एन इवेंट. हियर दिस इज ऑल्सो एन इवेंट. नेक्स्ट इज ड्रॉइंग अ बॉल फ्रॉम एन अर्न containing balls of different color. आपने एक बॉल फाइंड आउट करनी है, एक बॉल निकालनी है जिसके अंदर बहुत सारी कलर की बॉल्स हैं. तो इज इट एन इवेंट? यस, दिस इज ऑल्सो एन इवेंट. अगर आपके पास यहाँ पे कलर्स गिवन होंगे तो आप बता सकते हो कि आपके कितने उस कलर की प्रोबेबिलिटी कितनी है. अच्छा, next question is selecting a ball having less than 40%, selecting a student having less than 40% marks in mathematics. ये भी आपकी है, right? So yes, this is also an event, right? Next question. The next question is the probability of getting a black ball when a bag from a bag containing 3 blue, 7 black, and 5 green balls. What is the probability of getting a black ball? Yes, बिल्कुल ठीक है. 7/15. 7/15 is the probability. 0 कहाँ से आ गया? We have to take out the ball of black color, and black color the ball is there. So 7 are favorable, and total are 3 plus 7 10, 10 plus 5 15. So the probability will be 7/15. 0 नहीं हो सकती. Right. Next question is, in a single throw of 2 dice, the probability of getting a sum 7. Single throw of
टू डाइस हैं, आपने एक बार थ्रो किए. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम 7? सम 7 आना चाहिए. आई थिंक वी डिड दिस क्वेश्चन yesterday also when we did the question of the sum was 9 in that case. Here the sum is 7. 7 sum वाले आपके कौन कौन से हो जाएंगे? कितने फेवरेबल? योर फेवरेबल विल बी 5 2 2 5 6 1 1 6 4 3 3 4. आपका सम 7 हो गया. 3 4 5 6. So the favorable are 6 and total are 36. So the probability will be 1/6. 1 2 आंसर आ जाएगा. 36 means 1/6, right? Now next question is fill-ups. First is the probability of getting an odd number when a die is thrown. Odd number की probability बताइए. Why total are 36? Probability of getting an odd number when a die is thrown. So how many odd numbers are there on the dice? 3. कौन कौन से? 1 3 and 5. So 3 are favorable and total are 6. The probability will be 3/6, that is 1/2. हाँ जी, दोबारा से सुनो. आपके पास क्वेश्चन है, आपने एक डाइस को 2 बार थ्रो किया है, ठीक है. आपको कल भी बताया था, जब आप एक डाइस को एक बार थ्रो करते हैं तो उसके ऊपर टोटल कितने आउटकम्स होते हैं? यू हैव टोटल 6 आउटकम्स. And if you are taking 2 dice, in that case total outcomes will be 6 to the power 2. That is 36. और कौन कौन से 36? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 and 1 6. ये तो हुई हमारी 1 वाली लाइन. मतलब पहले डाइस पर 1, दूसरे पर 1, पहले पर 1, दूसरे पे 2. हो सकता है पहले पे 1, दूसरे पे 3, पहले पे 1, दूसरे पे 4. ये हमारी 1 वाली लाइन कंप्लीट हुई है. फिर हमारी 2 वाली लाइन कंप्लीट होगी. 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6. सिमिलरली 3 1 3 2 3 3 4 1 4 2 5 1 5 2 5 3 6 1 6 2 6 3. तो लास्ट लाइन में आपका 6 1 6 2 6 3 और ये हो गया 6 6, राइट. इस लाइन में 6 ये और टोटल 6 ही कॉलम्स हैं. तो टोटल आपके पास आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 6 6 36. एडिशन वाला भी बता देती है. ये एडिशन वाला एक क्वेश्चन है. इसमें हम कह रहे हैं कि आपके पास जब आप डाइस को रोल करो, 2 डाइस आर देयर, सो इफ यू रोल देम द सम शुड बी 7. अब सम 7, इनमें से हमारा 7 सम कहाँ का आवर है? दिस इज द सम 7. 6 + 1 6 + 1 ये भी 7 है, ठीक है. उसके बाद 5 2 आपका यहाँ पर आ जाएगा 2 5. उसका सम 7 होगा. एक 5 वाली लाइन में 5 2 आएगा, उसका सम 7 होगा. इसी तरह से एक आएगा आपका 3 4 और एक आएगा आपका 4 3. ये और ये आपके फेवरेबल हो जाएंगे. 1 2 3 4 5. एक कौन सा रह गया? 5 2, ठीक है. 6. Total 6 are favorable and total are 36. So the probability will be 6/36. That is 1/6. Yes, Shreya. एक क्वेश्चन है, वो आरडी का है, मेरे को समझ नहीं आ रहा. अच्छा, क्वेश्चन भेज दो. I will let you know. Send your question please. हो सकता है अभी अब रिविजन करवा रही हो सकता है आपका क्वेश्चन यहाँ पर आ जाए, ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज the event of occurrence of 8 when a fair die is rolled is what? The event of occurrence of 8, probability of occurrence of 8 when a fair die is rolled. What will be the probability? It will be itni high 0 1. It will be 0 because you do not have 8 on dice, on a fair die. Next question is the event of occurrence of a head or a tail when a coin is tossed is called a dash event. Head or tail. Event of occurrence of
और टेल। क्या बोलेंगे इसे? जब आप एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपका या तो हेड आना चाहिए या टेल आना चाहिए, तो ये आपका कैसा इवेंट है? This event is certain event, head या टेल। जब भी आप करेंगे टॉस तो हेड या टेल दोनों में से कुछ ना कुछ एक तो जरूर आएगा, ठीक है? सो दिस इज सर्टेन इवेंट और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? ये 1/2? नो, my probability मैं ये नहीं कह रही हूँ probability of head बताओ या मुझे probability of tail बताओ। I am asking any probability head or what clear? Just wait, I am refreshing the system. हाँ जी, ठीक है। I think now it is clear. Okay, let me start. हेड और टेल, हेड और टेल, चाहे आपका हेड आ जाए वो भी आपका फेवरेबल है, टेल आ जाए तो भी आपका फेवरेबल है। और एक कॉइन को अगर आप टॉस करते हो तो आपका ये सैंपल स्पेस है, ये भी फेवरेबल है, ये भी फेवरेबल है, तो टोटल हमारे फेवरेबल कितने हो गए? 2 एंड टोटल आउटकम्स आर 2। सो द प्रोबेबिलिटी विल बी 2/2, दैट इज 1। और जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है वो कैसा इवेंट होता है? आपका श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट। यस श्रेया। आपकी स्क्रीन क्लियर नहीं है। आई थिंक नाउ इट विल बी क्लियर। अब तो ठीक होगी, अब तो मैम मैं कर नहीं है चुकी। मैम, अब बिल्कुल ही ब्लर है। व्हाट डू अदर्स से? क्लियर है, क्लियर है बेटा, सबको क्लियर है। फिर आपको एक बार दोबारा से एंटर कर जाओ, एग्जिट ठीक करके है दोबारा से मैम। एंटर कर लो। यस विचित्र। यस वैभव, खुशी। क्लियर है ओके थैंक यू। मैम, क्लियर नहीं है। ओके चलिए, those who have not clear they please exit and enter again. Now the next question is, the following questions consist of no, not this question, this is not the part of your syllabus. Question is, when two coins are tossed simultaneously, what is the probability of getting at most one head? Two coins are tossed, what is the probability of getting at most one head? At most one head, not 1/2, not 1/2, not 2/4, नहीं है, at most one head। सबसे पहले हम लिख रहे हैं total outcomes, then we have two coins, head head, head tail, tail head, tail tail, right? I have 4 outcomes. Out of these 4 outcomes, I have to find out the probability of getting at most one head। एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा एक हेड हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकते, राइट? बट उससे कम हो सकते हैं, राइट? उससे ज्यादा हेड नहीं हो सकते, एक से ज्यादा नहीं हो सकते, तो सिर्फ ये वाला नहीं हो सकता। इसमें एक हेड है फेवरेबल, इसमें भी एक हेड है फेवरेबल, ये भी एक से कम हेड है फेवरेबल, ज्यादा से ज्यादा एक, उससे ज्यादा नहीं, बट उससे कम वाले चलेंगे। सो वी हैव 3 फेवरेबल and 4 total, so the probability will be 3/4, right? यहीं से एक क्वेश्चन और निकलता है, what is the probability of getting at least one head? Instead of the word at most, I am using at least one head। कम से कम एक हेड तो होना चाहिए, उससे कम नहीं चलेगा, उससे ज्यादा चल सकते हैं,
again, no, not 1/4, the probability will be 3/4. कम से कम एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड तो होना ही चाहिए उसके, अगर हेड नहीं है तो हमारा काम नहीं चलेगा। तो इसमें हेड नहीं है, उस केस में हमारा ये नो वाला केस हो जाएगा। एक हेड होना चाहिए है, एटलीस्ट वन हेड है, इसमें भी आपका एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड तो है, उससे ज्यादा हो गए तो भी चलेंगे। सो इन दिस केस ऑल्सो वी विल हैव 3 फेवरेबल and 4 total, right? Now the next question is find the probability of getting a multiple of 2 when a die is thrown. अब जल्दी से बता दो। Zero 0.5, 3/6, yes, 3/3. How? 3 कैसे हो सकते हैं total outcomes when you have a dice? Total outcomes will be 6, 36 या 3/6? 3/6, that means 0.5, right? So 3 will be favorable. Even numbers आपको चाहिए, 2, 4, 6 are even numbers and total are 6. So 3/6 means 1/2. Okay, now अब मैं आ रही हूँ थोड़े से एक क्वेश्चन और। 8 blue 5 yellow balls, 12 red 8 blue 5 yellow balls. A ball is drawn from the bag at random. Find the probability of getting a green ball. What is the probability of getting green ball? 0.25 means 0. Because we do not have green ball, so the probability will be 0. What is the probability of getting a yellow ball? Yellow 5/25 means 1/5. चलिए, now the question is, a die was rolled 100 times. ध्यान से सुनना, a die was rolled 100 times and 6 came up was noted. कितनी बार 6 आया आपने नोट किया? If the experimental probability calculated from this information is 2/5. टोटल 100 टाइम्स आपने रोल किया डाइस को, और एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 इज 2/5. यू हैव टू टेल हाउ मेनी टाइम्स 6 केम अप। 6 कितनी बार आया? गुड, 1 2 3 4 5 students have given. Pranjal, it's not correct. Krish, आपका भी गलत है। चलो खुशी, if it is not clear, please listen to my voice and tell me the answer. Don't get the answer question. Okay, listen the question again. The question is you are rolling a dice और उस dice को आपने 100 times roll किया। 6 कितनी बार ऊपर आया आप उसे नोट करते गए, और फाइनली जब हमने नोट करके उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की, 6 की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 2/5 आई। I am asking that how many times 6 came up. ठीक है हर्ष, आपका आंसर। पर रोशनी, इट्स रॉन्ग आंसर। हर्ष ठीक है, राघव बिल्कुल ठीक है। Your answer will be 40. 1/6, we do not have to find out the probability, Kalika. We have to find out how many times 6 came up. अगर मैं एज्यूम कर लेती हूँ कि मेरा 6 जो है वो x टाइम्स आया, ठीक है, एक बारी के लिए आप 2/5 को भूल जाइए कि आपको प्रोबेबिलिटी गिवन है। यू आर गिवन दैट 100 टाइम्स आपने रोल किया, दैट मीन्स टोटल आउटकम्स आर 100, राइट। नाउ हमने मान लिया कि 6 हमारा x टाइम्स आया। अगर 6 x टाइम्स आया तो फेवरेबल आउटकम्स आर x, राइट। तो यहाँ पर आपकी प्रोबेबिलिटी होगी फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। This is equal to favorable, आप कह रहे हो x है, total you are saying 100, right? ये भी आपने probability निकाली 6 की x upon 100. Also it is given in the question that probability of 6 is 2/5. That means we can say that x upon 100 is equal to 2/5. अब आप इतने को simplify कर लो और x की value find out कर लो। You will get x is equal to 2/5 multiply 100, and when you will cancel it, you will get 40. The value of x is 40.
मीन्स फेवरेबल आउटकम्स आर 40, मीन्स आपका 6 कितनी बार ऊपर आया? 40 टाइम्स. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन नाउ. Whosoever is having any problem, please mention in the chat box. Question now is the one more question I have for you, and that is that has gone somewhere. Yes, the percentage of marks obtained by a student in monthly unit tests are given below. The first unit test में ये टेबल आपको इस तरह से given है. There were 6 unit tests and percentage of marks obtained 52, 60, 65, 75, 80 and 72, right? We have to find out the probability that in next test the student gets more than 70%. This question was given last year in the exam, but the students were not able to do. 2 parts are there. What is the probability of getting more than 70%? Devanshi, it's not the right answer. सबका भी ठीक है. रोशनी करेक्ट, आर्यन ठीक, राघव नहीं है बेटा, ठीक नहीं है. परिधि करेक्ट, उमंग गलत, विचित्र ठीक है आपका. 2/7 7 के हाउ कैन बी इट बी 700? वही गलती करी. यस, मैं इसी चीज की वेट कर रही थी दैट हाउ मेनी ऑफ यू विल डू दिस एरर. किस किस ने इन सबको प्लस कर दिया? टोटल आउटकम्स आपने क्या किए? इन सबको प्लस कर दिए. बेटा वही चीज है कि आपको टेबल जो भी आपको डाटा गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड द डाटा कि आपको टेबल किस फॉर्म में दी हुई है. ठीक है, यहाँ पर आपका जो मैंने सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ था, वहां मैंने लिखा हुआ था ये ए, ये बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप. फिर मैंने लिखा हुआ था टोटल, और यहाँ पे हमारा 30 आया था, तो आपने 30 को टोटल आउटकम्स यूज किया था. बट इन दिस क्वेश्चन यू डू नॉट हैव टू यूज द सम ऑफ ऑल दीज एज द टोटल आउटकम्स. आपको ये कह रहे हैं, लिसन द क्वेश्चन, दे आर सेइंग टोटल 6 आपके पास टेस्ट है, और 6 टेस्ट में आपके ये मार्क्स हैं, राइट? पहले टेस्ट में 52%, सेकेंड टेस्ट में 60%, थर्ड में 65%, फोर्थ में 75%, फिफ्थ में 80%, सिक्स में 72%. What is the probability that in the next test the student will get more than 70%? तो यहाँ पे 70% से ज्यादा कितनी बार आए हैं? कितनी बार मार्क्स 70% से ज्यादा है? एक ये और एक ये, राइट? 70% से ज्यादा हमारे 3 बार है, 2 बार नहीं है. अगेन यू आर डूइंग द सेम मिस्टेक. यू हैव टू फाइंड आउट मोर देन 70%. तो ये भी 70 से ज्यादा, ये भी 70 से ज्यादा, ये भी 70 से ज्यादा है, राइट? सो ये हो गए आपके फेवरेबल. 3 आर फेवरेबल एंड टोटल कितने आपके टेस्ट हो चुके हैं? 6. सो टोटल आर 6, राइट? So the probability will be 3/6 means 0.5. What will be the probability that the student will get less than 70%? So 70% से less. मैसेज नीचे चला गया मेरा. डिस्टिंक्शन वाला एक मैसेज किसका था? चलो कोई बात नहीं, लेट इट गो. यस, लेस देन 70%. डिस्टिंक्शन क्या होता है? डिस्टिंक्शन होता है बेटा आपका 75% से ज्यादा मार्क्स जिसके होते हैं 75 एंड अबव, दैट इज कॉल्ड डिस्टिंक्शन. ओके, लेस वाले ये 3 केसेस हैं.
बट अगर मैं अपने क्वेश्चन में एक छोटा सा और चेंज करती हूँ, दैट आई एम टेकिंग इंस्टेड ऑफ 60 आई एम टेकिंग 70, अब फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या आएगा? मोर देन 70%? डिस्टिंक्शन, हाँ जी डिस्टिंक्शन ही बता रही हूँ, 75% से ज्यादा डिस्टिंक्शन होती है। मोर देन 70%, फिर भी 3/6 होगा, नॉट 4/6, 2/3 नहीं आएगा, 670 से ज्यादा, 70 मोर देन और इक्वल टू 70 नहीं बोला है, मोर देन 70, 70 से बड़े 1 2 3, ओनली 3 आर मोर देन 70। एंड व्हाट अबाउट दिस लेस देन 70%? कितने हैं लेस देन 70? 2/6, 1/3, yes, less than 70 एक ये हो गया और एक ये हो गया, so 2 are less than 70, so the probability will be 2/6, right? So ये अब तक आपका I think chapter 15 आपको बहुत अच्छे से clear हो चुका होगा। I am sure that you are not going to do any mistake in this chapter in your exam, and when the test will be conducted